سب سے پہلے تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتہ اسماعیل صاحب اور یہاں پہ جتنی میری بہت پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو السلام علیکم. اور یوتھ یہاں پہ موجود ہے، ینگ خواتین بھی ہیں اور ایک مکس سا گروپ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک پہلی اپرچونٹی ہے اپنی 30 سال کے ایکسپیرینس میں کہ کسی سیاسی پارٹی نے جو اس کی ابھی بگننگ ہوئی ہے انہوں نے ایک ایک پروگرام خواتین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ لانچ کیا اور بنایا کچھ، اور اس کو سب کے سامنے لے کر آئے اور اس میں مجھے شامل کیا. اور یہ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے. آئی ایم ناٹ اے ایکسپرٹ، میری ایکسپرٹیز کچھ نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے کام کیا ہے اور جتنا اس شعبے میں رہی ہوں، یہ خاور کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے ان کی ایک دن کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ روبینہ اس طرح سے ہو رہا ہے، عوام پاکستان جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے اور وہ ایک خواتین کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. اپنی انہوں نے ایک بنایا ہے سارا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پروفائل یا جو ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں عورتوں کے لیے. تو آپ کیا اس میں ایز اے پینلسٹ جائیں گی؟ تو ہاں، تو میں نے کر دی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا میں ایز اے پینلسٹ میں کیا کہوں گی. اور وہ چیز بات صحیح ہے کہ جو رپورٹ سیما آپ نے جو یہاں پہ پریزنٹ کر دی ہے وہ اٹس اے ٹریمنڈس رپورٹ. بہترین ہر نقطے کو آپ نے دیکھا، ہر پوائنٹ پہ آپ گئی ہیں. وائلنس کے حوالے سے بات کریں آپ، ویمن پارٹیسپیشن لیبر فورس کے حوالے سے بات کریں آپ، یہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ عورتوں تک انصاف کتنا پہنچ رہا ہے اور کتنی وہ تعلیم کے اندر کتنا وہ ان کی پارٹیسپیشن ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں. بہت سی آپ نے بہت باتیں کر دیں اور بہت کچھ لکھا آپ نے، جو ایک مکمل ڈاکیومنٹ ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہے جو آپ لوگوں نے، ایک بہت ہی بہترین مسودہ ہے جو آپ لوگوں نے تیار کیا. اور اس ساری چیزوں کو اس میں نگینے جو ڈالے وہ خاون نے بہت اچھی بات کی کہ 18 سال کی عمر جو تعینات کی جاتی ہے بچیوں کی شادی کے لیے، تو ظاہر ہے کہ 18 سے پہلے جب ان کی شادی کر دی جاتی ہے وہ کیا ریزنز ہیں. ان ریزنز کے لیے تو ہمیں باقاعدہ ایک ریسرچ کرنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں یہ جب گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کو گھروں میں چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ان بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، کام پر لگاتی ہیں اور یہ کوشش کرتی ہیں. برادری جو ہے اس میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دینی ہے. اب جب کہ 18 سال طے ہو گیا ہے، اور بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ 18 سے زیادہ بھی عمر ہونی چاہیے. اب تو یہ ہے کہ ایک طبقے میں لوگ زیادہ عمر کی بھی خواتین جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور میرے جیسی تو کہتی ہے کرنا ہی نہیں، میں باغی ہوں. تو بہرحال یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ شادی کی عمر کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی 15 سال کی، میں ہائی کورٹ گئی ایک کیس کے سلسلے میں، وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں 15 سال کی عمر میں، لائرز نے بٹھایا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، لائرز کے پاس بچیاں بچے آ رہے ہیں اور وہاں پہ 15 سال کی عمر کی بھی 16 سال کی عمر کی بھی ان کے آئی ڈی کارڈز بنے ہوئے ہیں. کس طریقے سے بنے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ ان کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے. بہرحال عمر کے حوالے سے تو ہو گئی بات. اب تشدد کے حوالے سے وائلنس جو ہے وہ کئی قسم کا وائلنس ہے. ایک جسمانی ہے، ایک ذہنی ہے، ایک آپ کو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کو فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کو ٹائم پہ سیلری نہیں دی جاتی، آپ کا اوور ٹائم جبراً آپ سے لگایا جاتا ہے. یہ سارے اس قسم کے وائلنس جو ہیں یہ ہمارے ہی معاشرے میں موجود ہیں اور بہت سے ممالک میں بھی ان پہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا. آپ کا جو یہ ڈاکیومنٹ ہے میں سمجھتی ہوں ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہے. اس میں اگر آپ انکلوڈ کر دیں جو خاون نے کہا ہے، میں جو بات کروں گی وہ اس حوالے سے بات کروں گی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آج سے نہیں، کنونشن فار دا ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن
खाकान अब्बासी साहब सीडा कन्वेंशन रेटिफाई किया हुआ है, और उसकी रेटिफिकेशन के लिए मेरी साथियों ने, मेरी बहनों ने, ख़वातीन ने जितना काम किया उसके ऊपर, और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी बैठे थे, ऑफिशियल्स ख़वातीन, उन्होंने भी जितना काम किया, यहाँ पे चीज़ें रेटिफाई हुई हैं, यहाँ पे ILO के कन्वेंशन रेटिफाई हुए हैं, यहाँ पर लेबर कवानीन बने हुए हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 24 ये कहता है कि तमाम शहरियों को एक से राइट होंगे, तमाम सिटीज़न को, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों, उनके सबके मसावी हुकूक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 34 जो है जिसका आपने हवाला दिया, वो खुसूसी तौर पर औरतों के हवाले से बात करता है, और हमारा एक लीगल सेटअप है। लेकिन क्या वजह है जो हम उस फ्रेमवर्क में अपने आप को अब तक सेट नहीं कर पाए? क्यों, क्या वजह है जो आज एक औरत जो है, एक बच्ची जो है, एक खातून जो है, एक फैक्ट्री वर्कर जो है, अपने ऊपर होने वाले जबर के खिलाफ जब माशरे में जाती है, जब वो लीगल सपोर्ट के लिए कहती है, तो क्या वजह है उसको वो लीगल सपोर्ट नहीं मिलती? ये सोचना पड़ेगा कि आया ये हुक्मरान जो हैं, क्या उन्होंने उन कितनी परसेंट वोट लेकर वो अवाम के इक्तिदार में आए, कितने परसेंटेज उन्होंने वोट लिए जो आम लोगों ने उनको, जो गरीब तबके ने उनको दिए, जो किस तरीके से उनको वो वोट मिले, वो वोट लेकर आए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहती चलूँ कि पाकिस्तान में, मैं आउट ऑफ द वे जाऊंगी, हुकूमतें बहुत आईं, बहुत दावे किए, बहुत कहा गया कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ से एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ से डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर देंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप में मारे खाई, जिन्होंने ऐसे कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाई जो कि सो कॉल्ड शरई कवानीन हैं, जिनके बारे में आज बात की गई कि जी जिना बिल जबर, ऑनर किलिंग की बात की गई कि ऑनर क्या सिर्फ खवातीन ही ऑनर हैं? क्या बेटे ऑनर नहीं है? क्या हम पे पाबंदी है कि हम सड़कों पे नहीं चल सकते? क्या हमें बुर्के के बगैर चलने की इजाजत नहीं? क्या हम अगर बुर्का पहने तो तब भी हमें इजाजत नहीं? हमारा ये हक है कि हम जौन सा चाहें लिबास पहने, जिस तरीके से चाहें हम अपने लिए सोच सकते हैं कि हमने जिंदगी को किस तरह से गुजारना है। पाकिस्तान बनाते वक्त क्या ये बातें बिल्कुल हुई थी? जिन्होंने कहा था कि ये सेकुलर पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान की बुनियाद सेकुलर लेवल पे हुई, तो कहाँ गया वो सेकुलर पाकिस्तान जिसमें आज औरतों को बोलने की आजादी, क्या उनको जुलूस करने की, जलसे करने की, आवाज उठाने की इजाजत नहीं है? आज आप देखें कि अगर एक्सट्रीमिज्म को फरोग किया गया है बड़े प्री प्लान तरीके से, और आप देखिए कि उस एक्सट्रीमिज्म ने क्या किया है, आपकी जड़ों में वो बैठ गया है वो एक्सट्रीमिज्म। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम कलमे पे यकीन रखते हैं, लेकिन क्या आप कुरान को कानून का हिस्सा किस तरह से बना सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। आप अदलिया और मुकन्नना को बिल्कुल एक साथ नहीं कर सकते। आपको रिलीजन में, आपके मुल्क में अकलियत है। मैं एक वर्कर हूं, मेरी यहाँ साथी जितनी बैठी हुई हैं और पीछे बैठे हुए ये वर्कर हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में ये काम कर रही हैं, होम बेस्ड वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं। हमारे साथ भी वही सलूक है जो एक क्रिश्चियन के साथ और जो एक हिंदुओं के साथ किया जाता है। अब तक रुबीना जमील अगर यहाँ पर आई है, अकेली नहीं आई, उसकी पूरी टीम ने, उसके कॉमरेड्स ने, उसके साथियों ने उसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर, आज 30 साल के बाद भी यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके सामने जिस तरीके से भी जो मेरे दिल में है वो मैं बात कर रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म मुझे देने का सीमा बहुत शुक्रिया। मैंने, मेरे साथियों ने जिनसी वायलेंस भी बर्दाश्त किया है, मेंटल टॉर्चर भी बर्दाश्त किया है और कर रहे हैं, और तनख्वाहें ना मिलने का टॉर्चर भी बर्दाश्त किया है। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं? उसकी बुनियादी वजह क्या है? जब गुर्बत इतनी होगी, जब गरीबी इतनी होगी, जब इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इतनी खराब होगी, तो किस तरह की शादियां, कैसे बच्चे, किस तरह से आपका एक फैमिली का सेटअप है वो चलेगा? ये सारा सोचना रियासत का काम है, हुक्मरानों का काम है, सियासी पार्टियों का काम है। हमारा काम तो सिर्फ
आवाज उठाना, प्रेशर ग्रुप बन के आना और ये हुकूमत को मजबूर करना कि महंगाई को कम करो, असले की दौड़ को खत्म करो, जंगों को खत्म करो, मोहब्बत को फरोग दो, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करो, औरतों पे होने वाले तशद्दुद, चाहे मर्दों पर वो तशद्दुद हो, खत्म करो, और जेंडर सेंसिटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। 30 साल से जेंडर के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। आप 30 साल में मैंने देखा तब्दीली आई। आज औरतें अगर उनके ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई जबर होता है, तो वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इदारों के पास जाती हैं। लोग कहते हैं कि एनजीओस ने काम किया, लोग कहते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं, वो चंद ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इन चीजों को उठाती हैं। मैं कहती हूं वाकई लोग अभी बैठे हुए हैं ऐसे जो इंसाफ की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं। आज तो मुल्क में ठेकेदारी निजाम को लागू करके हमें तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम की तरफ दोबारा लेके जाया जा रहा है। आज रूल्स बनते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, अधूरे छोड़कर उठ जाते हैं। क्या किस किस्म के कवानीन हैं होम बेस्ड के लिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए? पाकिस्तान में लेबर कवानीन 2012 2000 एक्ट बने हुए मुख्तलिफ, इतने पुराने एक्ट हैं। अगर उन्हीं को लागू कर दिया जाए तो आज हमारा मेहनत कश खुशहाल हो। आप भट्टे पे काम करने वाली औरतों का देखें, खाकान अब्बासी साहब, सीमा साहिबा, कि क्या उनका हाल है। पूरा दिन वो अपने बच्चों समेत काम करती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें 24% आपने लेबर फोर्स बताया, कोई स्टैटिस्टिक्स सही नहीं है ये। सीमा साहिबा, औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, इससे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपके पास नहीं है। क्योंकि पहले होती थी मैन पावर या लेबर डिपार्टमेंट, अभी भी मौजूद हैं, उनका काम है कि वो डाटा, उनके पास एक ऐसा वो दिया जाए सेटअप उनको जिसमें उनके पास पूरा डाटा हो। आज कोई डाटा नहीं है उनके पास किसी किस्म की। पायलर एक इंस्टीट्यूट है जो चल रहा है जिसके पास कुछ डाटा मौजूद है, या शिरकत गाह ने या कुछ खवातीन की तंजीमों ने ऐसे डाटाज कलेक्ट किए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आज मुझे पहली दफ़ा मौका मिला, और ये जो आपने डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी जो औरतों के हवाले से बनाई है, खुसूसी तौर पर आप डाउन ट्रॉडन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो खवातीन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आज ठेला भी लगा रही हैं, रेड़ियां भी चला रही हैं, रिक्शे भी चला रही हैं, घरों में बैठकर लाखों के हिसाब से काम कर रही हैं। फैक्ट्रियों के अंदर आप देखिए कि मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जहां पे खवातीन काम कर रही हैं, वहां पे लेबर कवानीन का इतलाक नहीं है। हमारी कोशिश है जो कि मिनिमम वेज, खाकान अब्बासी साहब, इसको लिविंग वेज होना चाहिए। मिनिमम वेज का क्या ये इस्तिलाह है? लिविंग वेज जब आप दोगे तो एक खानदान को वो कम से कम पूरी तरह से परवरिश तो कर सकेंगी। ये मिनिमम वेज जो है ये 37,000 है, और आप देखें कि वो किसी को भी नहीं मिल रहा। तो मैं यही कहूँगी कि ये एक आपका मुसव्वदा बहुत बेहतरीन है। कम्युनिटीज़ में जाइए, हमारी आपको मदद चाहिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कम्युनिटीज़ में जाएं, आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, आप मोबाइल हेल्थ सर्विस लोगों को दें, आप सेहत कार्ड दें, आप लोगों के लिए ऐसी आसानियां जो आप ऑलरेडी आपने जो डिस्क्राइब की हुई हैं, आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल उसको लेकर आएंगे उस शक्ल को, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी। मैं थोड़ी सी, मेरे सेंटिमेंट्स हैं, कुछ मैंने नौजवानों को मुस्कुराते भी देखा, शायद उन्होंने इस किस्म की दबंग बातें सुनी नहीं होंगी, लेकिन शायद वो खुश हो रहे होंगे। तो बहरहाल नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, और यूथ जो है वो पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा है, जिसमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं, और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, और हमें अवाम पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है। आखिर में मैं एक थोड़ा सा 1-2 जुमले गा के भी सुनाऊंगी, जो अगर इजाज़त है तो। एक तो ये रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। झुके न जो,
लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजदूर के, औरत और हुजूर के फर्क को मिटाएंगे, बराबरी को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। थैंक यू सो मच।